Hello friends, welcome to Kanagia Study Material. Today topic asterisk books August 29th, 2025 top current affairs news GK in Hindi and English asterisk in newspaper analysis. Asterisk Q1. National Sports Day is celebrated in India on which date every year? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? A. August 15th, 15. B. August 29th, 29. C. November 14th, 14. D. October 2nd, 2. White heavy checkmark / answer, 29 August. Asterisk open book / explanation asterisk National Sports Day is observed on Major Dhyan Chand's birth anniversary to honor his contribution to Indian hockey. राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है. Asterisk Q2. PM Narendra Modi started his two-day official visit to which country on August 29, 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2025 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की? A. जापान जापान. B. USA अमेरिका. C. ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया. D. चाइना चीन. White heavy checkmark / answer, Japan. Asterisk open book / explanation asterisk PM Modi is attending the 15th India-Japan Annual Summit in Tokyo to strengthen bilateral ties. पीएम मोदी टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके. Asterisk Q3. After Japan, PM Modi will attend the SCO summit in which city from August 31st, September 1st, 2025? जापान के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 को किस शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? A. अस्ताना अस्ताना. B. तियानजिन तियानजिन. C. बीजिंग बीजिंग. D. दिल्ली दिल्ली. White heavy checkmark / answer, Tianjin, China. Asterisk open book / explanation asterisk the SCO Summit 2025 is being hosted in Tianjin, China, where key regional security issues will be discussed. एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिन में आयोजित हो रहा है, जहां प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी. Asterisk Q4. Quad Alliance, India, Japan, USA, Australia, emphasized cooperation in which sector? क्वाड गठबंधन भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया? A. Tourism. B. क्रिटिकल मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स. C. फिल्म इंडस्ट्री फिल्म उद्योग. D. योगा योग. White heavy checkmark / answer, critical minerals. Asterisk open book / explanation asterisk Quad countries agreed to enhance cooperation in critical minerals for future technologies like semiconductors and EVs. क्वाड देशों ने भविष्य की तकनीक जैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया. Asterisk Q5. Which country successfully launched its first nuclear-powered aircraft carrier Fujian on August 29, 2025? 29 अगस्त 2025 को किस देश ने अपना पहला परमाणु संचालित विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया? A. USA अमेरिका. B. चाइना चीन. C. Russia. D. UK ब्रिटेन. White heavy checkmark / answer, China. Asterisk open book / explanation asterisk China launched its first nuclear-powered aircraft carrier Fujian, enhancing its naval power significantly. चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर संचालित विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया, जिससे उसकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई. Asterisk Q6. Which Indian state became the first to implement 100% e-health records for citizens?
कौन सा भारतीय राज्य नागरिकों के लिए 100% ई हेल्थ रिकॉर्ड लागू करने वाला पहला राज्य बना? A. Kerala. B. गुजरात गुजरात। C. कर्नाटक कर्नाटक। D. महाराष्ट्र महाराष्ट्र। White heavy check mark / answer, Kerala. Open book / explanation * Kerala achieved 100% digital health records by linking all citizens to digital health IDs. केरल ने सभी नागरिकों को डिजिटल हेल्थ आईडी से जोड़कर 100% डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लागू कर दिया। *Q7. Which IIT inaugurated India's first AI-driven smart agriculture innovation hub on August 29, 2025? 29 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला आधारित स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन हब शुरू किया? ए. आईआईटी मद्रास आईआईटी मद्रास। बी. आईआईटी दिल्ली आईआईटी दिल्ली। सी. आईआईटी खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर। डी. आईआईटी कानपुर आईआईटी कानपुर। White heavy check mark / answer, IIT Kharagpur. Open book / explanation * The hub will promote AI-driven farming solutions for precision agriculture. यह हब एआई आधारित स्मार्ट खेती समाधान विकसित करेगा ताकि सटीक कृषि को बढ़ावा मिले। *Q8. Which Kannada web series premiered on ZE5 on August 29, 2025? 29 अगस्त 2025 को Z5 पर कौन सी कन्नड़ वेब सीरीज रिलीज हुई? ए. शोधा शोधा। बी. डैनी दानी। सी. कवलुदारी कवालुदारी। डी. होमबेल होमवाले। उत्तर आंसर शोधा। Open book / explanation * Shoda is a political thriller web series based in Karnataka. शोधा एक राजनीतिक थ्रिलर वेब सीरीज है जो कर्नाटक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। *Q9. Bollywood film Puram Sundari starring Siddharth Malhotra and Janhavi Kapoor released on? सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानहवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी कब रिलीज हुई? A. August 15, 15. B. August 29, 29. सी. 1 सितंबर 1 सितंबर। डी. 25 जुलाई 25 जुलाई। White heavy check mark / answer, 29 August 2025. Open book / explanation * directed by Karan Johar, Puram Sundari is a romantic drama released on August 29, 2025. करण जौहर द्वारा निर्देशित परम सुंदरी एक रोमांटिक ड्रामा है जो 29 अगस्त 2025 को रिलीज हुई। *Q10. Which bank opened a startup dedicated branch in Delhi on August 29, 2025? 29 अगस्त 2025 को दिल्ली में किस बैंक ने स्टार्टअप समर्पित शाखा खोली? ए. एसबीआई एसबीआई। बी. पीएनबी पीएनबी। सी. एचडीएफसी एचडीएफसी। डी. आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई। White heavy check mark / answer, PNB, Punjab National Bank. Open book / explanation * The branch aims to support startups with funding, loans, and incubation services. यह शाखा स्टार्टअप कंपनियों को फंडिंग, लोन और इंक्यूबेशन सेवाएं प्रदान करेगी। *Q11. Fight Chess World Cup 2025 will be hosted in which state of India? फाइट शतरंज विश्व कप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? A. Kerala. B. गोवा गोवा। C. महाराष्ट्र महाराष्ट्र। D. कर्नाटक कर्नाटक। उत्तर आंसर गोवा। Open book / explanation * For the first time, India will host the Fight Chess World Cup in Goa.
पहली बार भारत फाइड शतरंज विश्व कप की मेजबानी गोवा में करेगा। Asterisk Q12. Who won the 2025 Ramon Magsaysay Award from India announced on August 29, 2025? 29 अगस्त 2025 को घोषित 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत से किसे मिला? ए. कैलाश सत्यार्थी। बी. मेधा पाटकर। सी. बेजवाड़ा विल्सन। डी. सुनीता नारायण। उत्तर आंसर बेजवाड़ा विल्सन। Asterisk open book / explanation asterisk he was awarded for his efforts to eliminate manual scavenging and social reforms. उन्हें हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने और सामाजिक सुधारों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। Asterisk Q13. Which country signed a defense cooperation agreement with India? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए. फ्रांस। बी. वियतनाम। सी. ब्राजील। डी. यूएई। White heavy check mark / answer, Vietnam. Asterisk open book / explanation asterisk the agreement aims to boost defense technology exchange and naval cooperation. यह समझौता रक्षा प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और नौसैनिक सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया। Asterisk Q14. Tamil Nadu government planned to sell 3,000 Indian rupees crore bonds via RBI on which date? तमिलनाडु सरकार ने 3,000 रुपए करोड़ के बॉन्ड आरबीआई के जरिए किस तारीख को बेचने की योजना बनाई? A. August 29, 29. बी. 2 सितंबर। सी. 1 सितंबर। डी. 5 सितंबर। White heavy check mark / answer, 2 September 2025. Asterisk open book / explanation asterisk the bonds will help Tamil Nadu raise financial resources for development projects. ये बॉन्ड तमिलनाडु को विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करेंगे। सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 29 अगस्त 2025। Heavy checkmark language Hindi and English #bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense All State All One Day exams. दोस्तों इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने भारत में अगले 5-6 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? Who has recently announced an investment in India over the next 5 to 6 years? A. 50,000 रुपए करोड़ बटा 50,000 रुपए करोड़। B. 60,000 रुपए करोड़ बटा 60,000 रुपए करोड़। C. 70,000 रुपए करोड़ बटा 70,000 रुपए करोड़। D. 80,000 रुपए करोड़ बटा 80,000 रुपए करोड़। White heavy checkmark / answer, A. 50,000 रुपए करोड़ बटा 50,000 रुपए करोड़। Asterisk blue book static GK fact asterisk. सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का मुख्यालय हमामात्सु जापान में है। The headquarters of Suzuki Motor Corporation is located in Hamamatsu, Japan. Asterisk 2. नायरा एनर्जी ने हाल ही में किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the new CEO of Nayara Energy? A.
टेमुर अबसगुलिएव बटा टीमर अबसगुलिएव। B. अलेसांद्रो डेस डोरिडेस बटा अलेसैंड्रो डेस डोराइड्स। C. इगोर सेचिन बटा आइगर सुकिन। D. रोमन ट्रोइटसिन बटा रोमैन ट्रॉटसिन। White heavy check mark / answer. B. अलेसांद्रो डेस डोरिडेस बटा अलेसैंड्रो डेस डोराइड्स। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. नायरा एनर्जी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। The headquarters of Nayara Energy is located in Mumbai, Maharashtra. Asterisk 3. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सितंबर 2025 के लिए गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण ISH कितने शहरों में शुरू किया है? RBI has launched the September 2025 round of the Inflation Expectations Survey of Households, IESH, in how many cities? A. 15. B. 17. C. 19. D. 21. White heavy check mark / answer. B. 17. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। The headquarters of RBI is located in Mumbai, Maharashtra. Asterisk 4. हाल ही में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? Who has recently been appointed as the new Prime Minister of Lithuania? A. दालिया ग्रिबाउस्कैटे बटा दलिया ग्राइबॉस्केट। B. इंगा रुगिनिये बटा इंगा रुगिनिये। C. गितानस नौसेदा बटा गितानास नौसदा। D. विक्टोरिया मिलाइटे नीलसन बटा विक्टोरिजा मिलीट नीलसन। White heavy check mark / answer. D. विक्टोरिया मिलाइटे नीलसन बटा विक्टोरिजा मिलीट नीलसन। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है और मुद्रा यूरो है। The capital of Lithuania is Vilnius and the currency is euro. https://whatsapp.com/channel/0029VBIZQHG3 or 3BQRE0L2Y/387. Asterisk 5. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMSVA निधि योजना की ऋण उपलब्ध कराने की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी है? The Union Cabinet has extended the loan provision period of the PMSVA Nidhi scheme till which year? A. 2028. B. 2029. C. 2030. D. 2032. White heavy check mark / answer. C. 2030. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. PMSVA निधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। The PMSVA Nidhi scheme was launched on June 1, 2020. Asterisk 6. हाल ही में SpaceX ने अपने पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य लॉन्च सिस्टम स्टारशिप का कौन सा सफल परीक्षण प्रक्षेपण पूरा किया? Recently, SpaceX successfully completed which number test flight of Starship? A. 8/8 एथ। B. 9/9 एथ। C. 10/10 एथ। D. 11/11 एथ। White heavy check mark / answer. C. 10/10 एथ। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. SpaceX
की स्थापना एलन मस्क ने 2002 में की थी? SpaceX was founded by Elon Musk in 2002. Asterisk 7. 26 अगस्त 2025 को उंग ने एआई के वैश्विक शासन को मजबूत करने के लिए कितनी ऐतिहासिक पहलें शुरू की? On August 26, 2025, UNGA launched how many initiatives to strengthen global AI governance? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. White heavy checkmark / answer. B. 2. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. संयुक्त राष्ट्र महासभा उंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। The UN General Assembly is headquartered in New York, USA. Asterisk 8. रक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और आश्रितों के कल्याण में सहायता हो सके? The Ministry of Defense signed in MOU with which organization to support over 63 lakh veterans and dependents? A. Niti Aayog. B. QCI. C. BIS. D. EPFO. White heavy checkmark / answer. D. EPFO. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। The headquarters of EPFO is in New Delhi. Asterisk 9. जम्मू और कश्मीर बैंक ने अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया है आरबीआई की मंजूरी के अधीन? Who has been appointed as the new non-executive chairman of J/and K Bank, subject to RBI approval? A. अश्विनी कुमार बटा अश्विनी कुमार। B. ए मणि कुमार बटा ए। Mani Kumar. C. एस कृष्णन बटा एस। Krishnan. दे एस मल्लिकार्जुन बटा एस। S. Mallikarjun. White heavy checkmark / answer. B. ए मणि कुमार बटा ए। Mani Kumar. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. JK बैंक की स्थापना 1938 में हुई थी। Jammu and Kashmir Bank was founded in 1938. Asterisk 10. दक्षिण कोरिया में नए कानून के अनुसार स्कूल कक्षाओं में मोबाइल और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध कब से लागू होगा? From when will the ban on mobile phones in classrooms in South Korea be enforced? January 2026. B. March 2026. C. July 2026. D. September 2026. White heavy checkmark / answer. January 2026. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. दक्षिण कोरिया की राजधानी सेउल है और मुद्रा वॉन है। The capital of South Korea is Seoul and its currency is won. Asterisk 11. भारत सरकार ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रस्तावित किया है? Which city has been proposed by India for hosting the 2030 Commonwealth Games? A. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। B. अहमदाबाद बटा अहमदाबाद। C. मुंबई बटा मुंबई। D. बेंगलुरु बटा बेंगलुरु। White heavy checkmark / answer. B. अहमदाबाद बटा अहमदाबाद। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk.
राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। The Commonwealth Games are held every 4 years. Asterisk 12. पीएमजेडीवाई योजना की 11वीं वर्षगांठ 2025 तक कुल कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं? How many Jan Dan accounts have been opened under PMJDY till its 11th anniversary, 2025? A. 42 करोड़ बटा 42 करोड़। B. 50 करोड़ बटा 50 करोड़। C. 56.2 करोड़ बटा 56.2 करोड़। D. 60 करोड़ बटा 60 करोड़। White heavy checkmark/answer. C. 56.2 करोड़ बटा 56.2 करोड़। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। PMJDY was launched on August 28, 2014. Asterisk 13. 27 अगस्त को विश्व झील दिवस किस वर्ष और किस प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था? World Lake Day on August 27th was declared in which year and through which UN resolution? A. 2022. A. Res 77 100 dotzens. B. 2023. A. Res 78 120ens. C. 2024. A. Res 79 142ens. D. 2025. A. Res 80 101ens. White heavy checkmark/answer. B. 2023. A. Res 78 120ens. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. विश्व झील दिवस का उद्देश्य झीलों और जलाशयों के संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। World Lake Day aims to raise awareness about the conservation of lakes and reservoirs. India-Africa bilateral trade crossed how many billion USD in FY 2024 to 25? A. 56 billion US dollars. B. 75 billion US dollars. C. 85 billion US dollars. D. 100 billion US dollars. White heavy checkmark/answer. D. 100 billion US dollars. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। Africa consists of 54 countries. Asterisk 15. EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2038 तक पीपीटी आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उस समय भारत का अनुमानित जीडीपी पीपीपी कितना होगा? According to EY, what will be India's estimated GDP PPP in 2038? A. 28.5 trillion US dollars. B. 30.7 trillion US dollars. C. 34.2 trillion US dollars. D. 40.5 trillion US dollars.
White heavy check mark / answer. C. 34.2 trillion US dollars. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. पीपीवी का अर्थ है परचेज इन पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समानता। PPP stands for Purchasing Power Parity. जय श्री राम। शुक्रवार 29 अगस्त 2025 के मुख्य समाचार। छोटी लापरवाही बनी जानलेवा। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 2023 में 16,025 लोगों की मौत। अक्साई चीन पर हमला किया, वह दोस्त नहीं है। चीन भारत की नजदीकी से भड़का अमेरिका। राहुल तेजस्वी के स्वागत में बने मंच से मोदी को मां की गाली दी गई, वीडियो वायरल। जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी ने बिगाड़ा ट्रंप का खेल, भारत चीन के सुधरने लगे संबंध। मोदी के दौरे से पहले जापानी अधिकारियों ने रद्द की यूएस यात्रा, ट्रेड डील पर बवाल। भारत संग संबंध बेहतर करने में जुटा कनाडा, 9 महीने बाद उच्चायुक्त की बहाली। BREAKING न्यूज इन हिंदी टुडे। मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल में किसी को रिटायर हो जाना चाहिए, मोहन भागवत। नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसे बिहार में, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए। घुसपैठ के दौरान जवानों पर फायरिंग की थी, सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। माचिस की तीली जितनी छोटी गर्भनिरोधक स्टिक, महिला की कोहनी के पास होगी फिट, 3 साल तक असरदार। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगेगी। समुद्र के ऊपर उड़ते समय इंडिगो फ्लाइट में गड़बड़ी, इंजन में दिक्कत आई। अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 150 यात्री सुरक्षित। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध कहा है। चीन की विजय दिवस परेड में शामिल होंगे किम जोंग उन और पुतिन। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल, जेडीयू 102, बीजेपी 101 और चिराग को मिली 20 सीट। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव, सुरक्षा भी बढ़ाई गई। शेयर बाजारों में बिकवाली जारी, सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरा, निफ्टी में भी गिरावट। 25 सितंबर से मिलेंगे हरियाणा की महिलाओं को 2,100 रुपए, सीएम सैनी ने की बड़ी घोषणा। F-35 जेट क्रैश, कैसे क्रैश हुआ F-35 जेट? हुआ खुलासा, क्रैश से पहले पायलट ने 50 मिनट तक इंजीनियरों के साथ की वीडियो कॉल। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी वांग झी को हराया, BWF विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय। जापान हाल ही में क्यूशु द्वीप पर माउंट शिनमोए ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। मिस्र, भारत ने ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास में भाग लेने के लिए 700 सैनिक मिस्र भेजे हैं। यह 28 अगस्त से 10 सितंबर तक एक त्रिसेवा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। राष्ट्रीय। केरल भव्य आचमायम शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 उत्सव की शुरुआत हुई। मणिपुर, एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किया गया। अगस्त 2025 में 28 कछुए निकले। ओडिशा, हाल ही में नुआखाई उत्सव मनाया गया। यह पश्चिमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल पर्व है। राजस्थान, जैसलमेर, भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला, जो लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना है। खेल। शतरंज सिंकफील्ड कप 2025 में आर प्रज्ञानंद उपविजेता रहे, जबकि विजेता बेल्सिसो बने। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। मणिपुर एशियन जायंट टोर्टोइसिस का पहला कृत्रिम ऊष्मायन सफल रहा। महत्वपूर्ण दिन।
29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया गया। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आलोक आराधे और विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ विशेषांक। व्याख्यान सभा छत्तीसगढ़ की जैव विविधता और आर्द्र भूमि। 29 अगस्त 2025 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ आईपैक्रिब रायपुर द्वारा व्याख्यान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम न्यूज। व्याख्यान सभा छत्तीसगढ़ की जैव विविधता और आर्द्र भूमि। 29 अगस्त 2025 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ आईपैक्रिब रायपुर द्वारा व्याख्यान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर में शाम 5 बजे आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सुजोग्य मिश्रा, अध्यक्ष आईपैक्रिब। विषय पर व्याख्यान प्रोफेसर डॉक्टर NL नायक। सचिव अनूप श्रीवास्तव ने सभी सदस्यों से उपस्थित होने का आग्रह किया। कौन बनेगा करोड़पति KBC में छत्तीसगढ़ से जुड़ा सवाल। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने बस्तर की मुरिया जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछा। सवाल, मुरिया जनजाति में पुरुष स्नेह के प्रतीक के रूप में महिलाओं को कौन सी हस्तनिर्मित वस्तु उपहार में देते हैं। विकल्प, दर्पण, चूड़ियां, कंघी, बेलन। सही उत्तर कंघी। ऑपरेशन निश्चय नशे के विरुद्ध अभियान। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय चलाया। इसमें शामिल जिले रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ दक्षिण कोरिया औद्योगिक साझेदारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण कोरिया के कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन किता प्रतिनिधिमंडल से सियोल में मुलाकात की। चर्चा के प्रमुख बिंदु निवेश, तकनीकी सहयोग और स्किलिंग। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024-30 और प्राकृतिक संसाधनों की ताकत पर प्रकाश डाला। संभावित निवेश क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा। लाभ, रोजगार के हजारों अवसर और वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की नई पहचान। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, red heart and share.